Hello, once again. Welcome you all on our favorite YouTube channel, that is Kiran Kulte Biology Academy. Myself, Kiran Suresh Kulte. I heartily welcome you all on our YouTube channel, that is Kiran Kulte Biology Academy. So already we are all are knowing that we already started a crash course for the upcoming exams, NEET and MST CET. So in this crash course or the series that we started for the preparation of MST CET as well as NEET exam 2021, we started the lectures based on the syllabus of MST CET as well as NEET from the syllabus of biology. Is it clear? So more than this, for getting a answer for your all questions as well as doubt from the syllabus of biology, join our telegram channel, that is everything biology, by using this link. The link is already given in the description box. Before going to start with the today's session, आज का सेशन है reproduction in lower and higher animals part 2. So in this today's lecture we are going to take a quick revision of the chapter number 2 from the syllabus of 12th standard. In this chapter we are going to cover an important topic through the MCQ. So in this next half an hour we are going to see the important MCQ from this chapter, reproduction in lower and higher animals. Once again welcome you all. Myself Professor Kiran Suresh Kolte. Best of luck all my dear students. Best of luck. Definitely you will get valuable knowledge through our lecture for scoring good mark in our upcoming exams. तो बेस्ट ऑफ लक एंड डू सब्सक्राइब करो अपने चैनल को. शेयर द वीडियो लेक्चर लिंक इन योर फ्रेंड सर्कल. टेल देम टू सब्सक्राइब ऑल्सो. डू लाइक एंड डू कमेंट. पुट योर कमेंट्स. द कमेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. इज क्लियर? चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट MCQ is on your screen. Sequence of hormone during a menstrual cycle is menstrual cycle. The cyclic changes those who takes place inside in the thickness of uterus as well as the hormonal changes those who are occur inside in the ovary. तो इसको कहते हैं menstrual cycle. The period when the menstrual cycle has get a start. जब menstrual cycle start होता है, that period is called as menarche. वो कितना रहता है? 10 to 14 years. And the period when the menstrual cycle has get stopped, that is called as what? Menopause. तो वो क्या रहता है? 45 to 50 years. तो हमको पूछा क्या है? सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, 1 2 3 एंड 4. फर्स्ट फेज क्या है? दैट इज द ब्लीडिंग फेज. सबसे पहला जो फेज है दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज. इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. इज इट क्लियर? तो इन अ मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? देखो, मेंस्ट्रुअल फेज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हैज गेट अ डिक्रीज. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इज क्लियर? दूसरा फेज क्या है? तो दिस फर्स्ट फेज ड्यू टू द व्हेन द ओवम डज नॉट गेट अ फर्टिलाइज. तो क्या होता है? द अनफर्टिलाइज ओवम से क्या होता है? द कॉर्पस ल्यूटियम जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, इट हैज गेट कन्वर्टेड टू कॉर्पस अल्बिकांस एंड देयरफॉर द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इज क्लियर? तो दिस फर्स्ट फेज which is also called as funeral of unfertilized egg or weeping of uterus for the unfertilized egg. तो उसको कहते हैं ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज. इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. फर्स्ट 3 to 5 days, नियर अबाउट 45 to 100 ml ब्लड लॉस हैज गेट ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज. दूसरा फेज क्या है? द सेकंड फेज दैट इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज. सेकंड फेज को हम क्या कहने वाले? प्रोलिफरेटिव फेज. Proliferative phase. Here the maturation or formation or development of Graafian follicle has get a start under the influence of follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone which is secreted by pituitary gland. तो follicle stimulating hormone क्या करती है? It stimulate the development of Graafian follicle. इसके बाद थर्ड फेज क्या है? Ovulation phase. तो थर्ड फेज is the ovulation phase. It occur on the 14th day. On the 14th day, under the influence of luteinizing hormone, क्या होता है? Mature Graafian follicle undergo rupturing. तो rupturing of mature Graafian follicle to release the secondary oocyte. It occur under the influence of luteinizing hormone on 14th day. And the last
स्टेप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो क्या है? सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी और ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? इफ द सेकेंडरी oocyte और ओवम फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? द ग्राफियन फॉलिकल हैज गेट कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इट इज गोइंग टू मेंटेन द थिक vascular nature of vascular and glandular nature of endometrium. If a corpus luteum, अगर fertilization नहीं होता है तो corpus luteum has get converted to corpus albicans and therefore the level of progesterone has get decreased and once again the same bleeding has get occur, that is once again the menstrual phase has get a start, that is next menstrual cycle. तो during these 4 phases हमको करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है हार्मोन्स का। तो इधर सबसे पहले क्या दिया? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है? फॉलिकुलर सेल। अगर फॉलिकुलर सेल किस में होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल कब बनता है? इन अ सेकंड फेज। इज क्लियर? फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले क्या आएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये आएगा FSH पहला आएगा। इसके बाद FSH से क्या बनेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के जो फॉलिकुलर सेल्स है, दे आर गोइंग टू सीक्रेट हार्मोन ईस्ट्रोजन, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो नेक्स्ट आएगा, सेकंड आएगा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के बाद क्या होगा? रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो उसके बाद क्या होगा? द ग्राफियन फॉलिकल हैज गेट कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम। उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवा इज नोन एज। तो रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल रप्चर कब होता है? ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH, दैट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट क्लियर? तो ये एक प्रकार का क्या है? गोनाडोट्रोपिन है। तो इट इज कॉल्ड एज अ गोनाडोट्रोपिन LH। तो LH क्या करता है? इट इज गोइंग टू प्रमोट रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इससे क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल इज गोइंग टू रिलीज ओवम। तो इससे क्या होता है? ओवम बाहर निकल के आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवम नहीं होता ये होता है सेकेंडरी oocyte। इज क्लियर? तो दिस इज द सेकेंडरी oocyte व्हिच हैज गेट कम आउट फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है, it has get converted into corpus luteum and this corpus luteum is going to secrete a hormone progesterone. Is it clear? तो ये जो रप्चरिंग का प्रोसेस है, ये किसके अंडर होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑन द 14th डे। तो दिस प्रोसेस ऑकर इन द थर्ड स्टेप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट फेज, ये एक ही दिन चलता है। It is the shortest phase in the menstrual cycle and the longest and complex phase कौन सा होता है? Longest and complex phase in the menstrual cycle, that is the last phase। कौन सा है वो last phase? Last phase is the secretory phase। Secretory phase क्या है? Longest and complex phase। It occur between 15th to 28th day। Is it clear? तो the rupturing of follicle and discharge of ova, that is the secondary oocyte, is known as ovulation। It is known as what? Ovulation। चलो आगे चलते हैं। Shortest period of menstrual cycle, just now I told shortest period of menstrual cycle। menstrual cycle का सबसे छोटा पीरियड कौन सा रहता है? छोटा, जो एक ही दिन चलता है। एक दिन चलने वाला कौन सा है? which occur on the 14th day। 14 डे एक ही दिन जो चलता है, that is called as what? ovulatory phase। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इज इट क्लियर? सिक्रेटरी फेज लास्ट फ्रॉम, इट ऑकर बिटवीन 15 to 28th डे। मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 4th डे। प्री ओव्यूलेटरी फेज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज ऑकर फ्रॉम 5th to 13th डे। तो सबसे पहला कौन सा है? ये वाला है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन,
this one is the third one, and this one is the fourth one. So these are the 4 phases. So ovulatory phase occur only, it lasts for only 1 day. It lasts for 1 day only. That is the shortest phase, that is the ovulatory phase, in which the mature Graafian follicle has get ruptured and it is going to release a secondary oocyte. So secondary oocyte बाहर जाता है from the Graafian follicle. It occur on the 14th day. तो correct answer क्या आएगा आपका? The correct answer for this question is a ovulatory phase. Next one. Which of the following is secrete testosterone? Testosterone क्या है? It is called as a male hormone. So this is a male hormone. It is going to control a secondary sexual character in a male human being. Male human being में secondary sexual character कौन control करता है? Testosterone. ये कौन secrete करता है? Prostate gland, interstitial cell, Leydig cell या both B and C. तो prostate gland क्या है? Prostate gland it is a present below urinary bladder. ये urinary bladder के नीचे gland होता है. It is going to secrete a alkaline fluid that is called as prostatic fluid. It is going to neutralize. ये क्या करता है? It is going to neutralize the acidity of vagina. तो ये acidity of vagina को ये क्या करता है? Neutralize करता है. Is it clear? तो prostate gland it also increases the motility. It is going to activate a sperm. तो prostate gland it consists 20 to 30 lobes and it is present below the urinary bladder. It is the accessory male reproductive gland. Interstitial cell and Leydig cell both are same. So they are going to produce a hormone testosterone in between the seminiferous tubule. For example, if these are the seminiferous tubule, in between the seminiferous tubule the connective tissue is present, and in these connective tissues some loosely arranged cells, those who are present, they are called as Leydig cell or interstitial cell. So these are interstitial cell, they are going to secrete a hormone testosterone. Is it clear? तो ये क्या है? ये है seminiferous tubule. Seminiferous tubule. Internet it is lined by Sertoli cell and germinal epithelium. Is it clear? तो seminiferous tubule is a concern with what? Spermatogenesis. इसका काम क्या है? Spermatogenesis है. चलो. Spongy urethra is spongy urethra. ये जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. व्हाई? बिकॉज इट कैरी बोथ. तो ये क्या करता है? इट इज गोइंग टू कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड. यूरिन एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड दैट इज अ सीमन. तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट. तो यूरेथ्रा इन अ मेल, मेल में यूरेथ्रा कितना रहता है? 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, whereas in female it is only 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. ये फीमेल में क्या होता है? छोटा होता है. व्हाई? बिकॉज इन अ मेल द यूरेथ्रा इज अ पासेस थ्रू द पेनिस. यूरेथ्रा कहाँ से पास होता है? पेनिस से. तो अभी ये जो यूरेथ्रा है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, अगर ये मैंने यूरिनरी ब्लैडर निकाला एंड दिस इज द यूरेथ्रा विच हैज गेट ओपन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एट द टिप ऑफ पेनिस. तो अगर ये पेनिस है ऐसे, दिस इज द प्रीप्यूस, द फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट ओवर द ग्लांस पेनिस. ये है ग्लांस, ये है प्रीप्यूस और फोरस्किन पेनिस. नाउ द यूरेथ्रा, ये क्या है? ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर. नाउ द यूरेथ्रा विच इज द पासेस, इसके नीचे क्या है? ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है. दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. द यूरेथ्रा विच इज द पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहेंगे. प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. द यूरेथ्रा विच इज अ पासेस थ्रू द पेनिस, तो इधर से इधर तक. तो ये कौन सा है? जो रेड कलर में मैं दिखाने वाला हूं, ये वाला, विच इज अ पासेस थ्रू द पेनिस, इसको क्या कहते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा. एंड द यूरेथ्रा विच इज अ प्रेजेंट इन बिटवीन द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा. हियर द काउपर ग्लैंड इज प्रेजेंट. ये क्या है? हमारा काउपर ग्लैंड है. हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है? द स्पॉन्जी यूरेथ्रा इज व्हाट? व्हेन यू टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस. पेनिस का जब हम टीएस लेते हैं, टीएस ऑफ पेनिस, पेनिस कंसिस्ट 3 इरेक्टाइल टिश्यू. इसमें 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं. 2
टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, and one corpus spongiosum. Is it clear? And your urethra is a passage from the center of this corpus spongiosum. Is it clear? तो इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा. Is it clear? तो the urethra which is a passage through this penis. पेनिस में क्या है? ये इरेक्टाइल टिश्यू है. These are the erectile टिश्यू. और उसमें से एक जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, उसमें से यूरेथ्रा पास हो रहा है. तो स्पॉन्जी यूरेथ्रा किसको कहते हैं? स्पॉन्जी यूरेथ्रा इज द यूरेथ्रा विच इज अ पासेज थ्रू द पेनिस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्पिनाइल यूरेथ्रा, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द यूरेथ्रा विच पासेज थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहाँ है? पेनिस में. तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज पिनाइल यूरेथ्रा. इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा बोथ A and C. नेक्स्ट वन, फाइंड ऑड वन आउट. इसमें से एक ऑड है, उसको ढूंढना है बाहर. टेस्टिस, टेस्टिस क्या है? मेल गोनैड है. इट इज अ मेल गोनैड और इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ मेल ह्यूमन बीइंग, इन मेल ह्यूमन. और ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड क्या है? दीज आर द एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है. Is it clear? So they are going to produce what? The component of semen. Seminal vesicle is going to produce 60% of semen. Prostatic gland is going to produce 30% of semen, and Cowper gland is going to produce a lubricating fluid. Is it clear? तो ये सारे क्या है? Accessory male reproductive gland है. तो और क्या हुआ? Testis हुआ. Testis which is mainly concerned with spermatogenesis. Is it clear? They are, it is a present outside of the body. और बाकी के क्या है? ये एब्डोमेन के अंदर है. और टेस्टिस का है? टेस्टिस इज आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन. ये क्या है? आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन है. और बाकी के क्या है? दे आर एब्डोमिनल इन ओरिजिन. और ये क्या है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है. ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. मेल गोनाड है, मेल वाला. तो और कौन सा हुआ? टेस्टिस. इसके बाद the beginning of menstrual cycle is called as, when the menstrual cycle has get a start in the female human being. Is it clear? तो उसको हम क्या कहेंगे? menopause, menarche या ceasing of menstrual cycle या none of this. menopause किसको कहते हैं? when the menstrual cycle has get start, when the menstrual cycle has get a stop, तो वो एज क्या होता है? 45 to 50 years. in that age period, age group, the menstrual cycle has get a stop. जब वो स्टार्ट होता है उसका रेंज क्या है? 10 to 14 ईयर्स. तो 10 to 14 ईयर्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज गेट अ स्टार्ट. तो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज मेनार्च. इज क्लियर? सीजिंग ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या है? सेम है. दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज गेट स्टार्ट. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेनार्च. when beginning of menstrual cycle is called as menarche, that is 10 to 14 years. चलो, मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड. मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड क्या है? तो मैमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल ह्यूमन बीइंग. मैमरी ग्लैंड का होना ये किसका कैरेक्टर है? मैमल्स का कैरेक्टर है. तो वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अ फीमेल ह्यूमन बीइंग. इज क्लियर? तो ये मैमरी ग्लैंड क्या है? दीज आर द मॉडिफाइड सेबाशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड या नन ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर है दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. इज इट क्लियर? तो ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट नियर अबाउट 15 to 20 lobes, and in these lobes areolae क्या alveoli are present. Secretory sac like structure, those are going to secrete milk or mammary glands. Is it clear? चलो, the wider part of lactiferous duct is called as mammary duct, alveoli, mammary gland lobes या ampulla. For example, if I draw the diagram of breast area, तो on the breast where the large number of lactiferous ducts has get open. For example, these are the lactiferous ducts. Those who are get open on the nipple. तो ये कहाँ ओपन होते हैं? निप्पल के ऊपर. The dark highly pigmented area which is present behind nipple, that is called as what? Areolae. इसको हम क्या कहते हैं? Areolae कहते हैं.
Now these lactiferous duct, they are provided with some swollen region. The swollen regions, those are present behind the lactiferous duct, that is called as ampulla. इसको हम क्या कहते हैं? Ampulla. This ampulla leads into the mammary duct. Mammary ducts has get arise by joining of large number of mammary tubules, and these mammary tubules, they has get arise from the mammary lobes. Is it clear? Such how many lobes are there? 15 to 20 lobes are present. Is it clear? तो such 15 to 20 lobes are there. तो ये है mammary tubules, mammary duct. This is a ampulla and lactiferous ducts. Those are get open at the tip of ampulla. Is it clear? चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है? The wider part of lactiferous duct. Lactiferous duct के पीछे जो wider part है, इसको हम क्या कहेंगे? ampulla कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ampulla. Is it clear? चलो. How much blood loss takes place during a bleeding phase? Menstrual phase में जो first menstrual phase जो है first step of menstrual cycle, उसमें कितना लॉस होता है? 10 to 13 ml, 45 to 100 ml, 100 to 200 ml, none of this. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 45 to 100 ml blood loss has get takes place. Whatever blood loss occur during a bleeding phase, that blood come out in the liquid form. Here the enzyme fibrinolysin, कौन सा एंजाइम है? ये नाम याद रखो, fibrinolysin prevent, ये क्या करता है? It prevent the clotting of blood. It prevent the clotting of blood. When the blood has get come out due to the rupturing of endometrium, normally it undergo clotting, but ये जो fibrinolysin है, it is going to prevent the clotting of blood. Therefore the blood come out in a liquid form. कौन से फॉर्म में आता है? ये बार लिक्विड फॉर्म में आता है. इज क्लियर? तो नियर अबाउट 45 to 100 ml blood loss has get occur during this first phase of menstrual cycle. Next, ovulation occur under the influence of, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही MCQ में बताया था. Ovulation, the release of secondary oocyte or ovum on the 14th day from the Graafian follicle. The rupturing of Graafian follicle, it occur under the influence of one gonadotropic hormone, that is called as what? LH. इधर आंसर दिया है क्या? नहीं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? LH आएगा. LH इधर दिया है क्या? नहीं दिया है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस. रेनिन क्या है? रेनिन इज अ मेनली कंट्रोल, इट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इनसाइड अ किडनी. इज क्लियर? इसके बाद रिलैक्सिन क्या करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम और ओवरी. तो ये क्या करता है? इट इज गोइंग टू रिलैक्स द cervix and the ligaments of pelvic girdle at the time of childbirth. Estrogen क्या करता है? It bring a repairing of endometrium and it control secondary sexual character. It controls secondary sexual character in a female human being. तो करेक्ट आंसर क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फॉलिकुलर सेल सिक्रेट. फॉलिकुलर सेल क्या सिक्रेट करती है? थिका इंटरना. उसमें से कौन सा फॉलिकुलर सेल? थिका इंटरना. थिका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज गोइंग टू सिक्रेट विच हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH या FSH. LH FSH किसके प्रोडक्ट है? दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ये किसके प्रोडक्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोडक्ट है. प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रेट करता है? placenta after its formation and corpus luteum and estrogen. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? estrogen. Estrogen is secreted by theca interna. It is a layer present in a Graafian follicle that is called as follicular cells. इसके बाद each mammary gland consists how many mammary lobes? हर एक mammary gland में कितने lobes होते हैं? 5 to 10, 15 to 20, 20 to 25, more than 100. तो मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था. How many lobes are there? तो ऐसे कुछ तो भी डायग्राम है ना. तो ऐसे कितने होते हैं? 15 to 20 lobes are present. कितने lobes होते हैं?
15 to 20 lobes are present in each mammary gland. 15 से 20. Is it clear? चलो. Testes are attached to the scrotum by muscular cord of a connective tissue called. तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था. Testes are present inside in the scrotum. इसको मराठी में कहते हैं अंडाशय. And it is separated into two compartments by means of a septum. And here these are pinkish oval shape structure. Those are present inside in each and every compartment. दो रहते हैं testes. They are connected to the wall of a scrotum by means of an fibromuscular connective band. That is called as what? Gubernaculum. इसको हम क्या कहते हैं? Gubernaculum. Is it clear? So before going to finish with the still few MCQs are remaining. If you definitely like, do subscribe and put your comments also, and share our video lecture link in your friend circle. Without fail, subscribe our channel for getting more and more such a nice interesting videos. Dash is an indication of abdominal origin of testis. Abdominal origin of testis. Testis कहाँ develop होती है? Testis has get developed inside in the abdomen, and in the 7th month of development, during a pregnancy, testis come out from the abdomen through the inguinal canal and lie into the scrotum. So what is an indication of abdominal origin of testis? Tunica vaginalis. It is a peritoneal covering, incomplete peritoneal covering present around the testis. That is called as tunica vaginalis. तो ट्यूनिका वैजिनालिस का होना ये क्या है? इंडिकेशन है एब्डोमिनल ओरिजिन ऑफ टेस्टिस. ट्यूनिका अल्बिजिनिया क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर. ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू लेयर है. इट इज प्रेजेंट बिलो द ट्यूनिका वैजिनालिस एंड इनर मोस्ट थिन हाईली वैस्कुलर लेयर. हाईली वैस्कुलर लेयर दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वैस्कुलरिस. इज क्लियर? ट्यूनिका फॉलिक्युलिटिस ये ऐसा कुछ होता नहीं, ये रॉन्ग है, तो इसको कट कर दो. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा अपना? तो करेक्ट आंसर है ट्यूनिका वैजिनालिस का होना. ये क्या है? निशानी है टेस्टिस की एब्डोमिनल ओरिजिन की. वेस्टिबुलर ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज वेस्टिबुलर ग्लैंड. वेस्टिबुलर ग्लैंड दीज आर द एसेसरी फीमेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड. तो टू वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर देयर. एक है होता है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और दूसरा क्या होता है? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड. तो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. ये क्या होता है? एट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इन द वेस्टिबल. एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ वजाइना. इज इट क्लियर? तो वेस्टिबुलर ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज काउपर ग्लैंड. काउपर ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड. दोनों क्या है? सेम है. दोनों क्या है? सेम है. तो दीज आर द पी सीड साइज ग्लैंड प्रेजेंट इन अ मेल ह्यूमन बीइंग. तो ये क्या है? मेल सेक्स ग्लैंड है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड. वेस्टिबुलर ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार्थोलिन ग्लैंड. वेस्टिबुलर ग्लैंड को क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बार्थोलिन ग्लैंड. नेक्स्ट वन, व्हाइट स्क्वायर इनसाइड इन द ओरी इज. ओरी के अंदर क्या होता है? देखो, ऑन द 14th डे आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब क्या होता है? एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल. जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, तो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम. If a fertilization takes place, corpus luteum remain as it is inside in the ovary for next 2 to 3 months, where it is going to secrete a progesterone. If fertilization does not get takes place, corpus luteum has get converted into white scar. Degenerating corpus luteum is called as corpus albicans. तो white scar जो है inside in the ovary, ये क्या है? corpus albicans है. Is it clear? अगर वो उन्होंने पूछा रहता एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल तो आता था corpus luteum. Is it clear? तो करेक्ट आंसर क्या है? corpus albicans is the white scar. Glans penis is covered by. Glans penis क्या है? The enlarged portion. The enlarged tip portion of the penis which is covered by means of a fold of skin that is called as prepuce or foreskin. तो ये जो glans penis है, glans penis है, it is covered by means of what? Glans penis. ये किससे covered होता है? It is covered by means of a fold of skin. इसको हम क्या कहते हैं? foreskin या prepuce.
तो दोनों कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज फोरस्किन एज वेल एज प्रेप्यूस. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड सी. लैबिया मेजोरा क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल वुल्वा. वुल्वा का ये क्या है? कंपोनेंट है लैबिया मेजोरा. कल के लेक्चर में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा. मैंने वुल्वा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था. इन माय अपकमिंग लेक्चर्स आई एम गोइंग टू ब्रिंग in detail video lectures based on the entire syllabus of 11th and 12th biology, which is important for your CET and NEET as well as your board exam. Both the boards I am going to cover, CBSE and state board. But before that, subscribe our channel. Subscribe करो for getting a more and more video lecture. Is it clear? चलो. In inguinal hernia में क्या होता है? Inguinal hernia टेस्टिस आर पुअरली डेवलप. इसको कहते हैं कि इंजुइनल हर्निया? नहीं. टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम. इसको कहते हैं कि इंजुइनल हर्निया. इसको कहते हैं क्रिप्टोचिडिज्म. लूप ऑफ इंटेस्टाइन में पास थ्रू द इंजुइनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम. तो टेस्टिस के साथ इंजुइनल कैनाल से क्या आता है? थोड़ा सा इंटेस्टाइन का पार्ट भी आता है. इसको कहते हैं इंजुइनल हर्निया. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी. ओनली वन टेस्टिस इज प्रेजेंट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वन. तो करेक्ट आंसर क्या है? Correct answer is option C. Last, the primordial follicle converted into mature Graafian follicle within dash dashes. इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर किया था. You will get the detailed lecture. Development of Graafian follicle. Development of Graafian follicle. तो ये Graafian follicle कैसे 90 days में डेवलप होता है, इसके ऊपर see one my previous video lecture ऑन आवर चैनल. इसके ऊपर मैंने हमारे चैनल के ऊपर एक लेक्चर बनाया है. गो एंड सी. इन दैट यू विल गेट ए डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैज गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी बनता है टर्शियरी, और टर्शियरी से बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. तो द कन्वर्जन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टेक्स 90 डे टाइम पीरियड. कितना टाइम लगता है? 90 दिन लगते हैं, 90 डेज. इज इट क्लियर? डेफिनेटली इफ यू लाइक our today's lecture, go and subscribe our channel, do like, give your comment, and tell your friends also about our lecture. Thank you very much. Subscribe करो अपने चैनल को for getting more important lectures like this only. Is it clear? चलो, thank you.